Otherwise, there are new rules, you know. Okay. Some new concept you are going to learn today. So, what is that? Everybody look straight. Notebook अपनी खोल के रखो. There is no module with you today. ठीक है? Open your notebook. Look straight, all of you. We'll be discussing. I'll be telling you when to note down. जब लिखना होगा मैं आपको बता दूंगी. ठीक है? चलो, very good. Are you ready? Everybody look straight. Chapter's name is Number Play, right? You can write down the chapter's name so that Number Play. Write down today's date. Write down the topic. Number Play. In this chapter, there are few rules, and these rules you have to absorb as it is. Okay? You cannot change them. And the facts which are there, you have to learn it, of course, and you have to prove it by taking examples. Okay, randomly you can take any example to prove that what is told here, it is correct. Okay, so we will be doing so many concepts over here. So what is that? First of all, you have to see, you know already what are even numbers and what are odd numbers. ये तो पता ही आपको even numbers कौन से होते हैं, odd numbers कौन से होते हैं, right? So now we are going to do the pairty of them. Pairty means combination of them. Pairty means combination. किसका combination? Even and odd का. We want to see कि when they are combined together, what do they do? Right? Now we have few facts over here. When we add two even numbers, we always get an even number. Example is in front of you here. We have taken the simplest example, 2 plus 2 is equal to 4. You can take any other example of first property, that is they are showing even plus even is equal to even. Let us take many examples. All the children will take different example. Okay, I will not be telling you कि fix ये वाला number लो. You are proving that this is a fact which is true for any number. You choose your own number and check it and raise your hand whether you are getting it or not. Take 14, 12, 10, 28, take any two even numbers and prove it. Are you writing? Good. Please tell me, roll number 5, please come forward. And tell me which example you have taken. Have you taken any example, beta? Mic on करो. या अभी शुरू कर रहे हो लिखना? I think you have just started, is it? अभी लिखना शुरू किया है? कोई एग्जाम्पल शुरू किए आपने या अभी लेना है बेटा? यू थिंकिंग ऑफ टेकिंग एनी एग्जाम्पल अभी? If not started, go and start. It's okay. It's okay. Go, settle down. Very good. Quickly now, keep your mind in the classroom. बाकी चीजें सब छोड़ दो. इसके बाद क्या होना है या पहले क्या हुआ, whatever, leave it. Focus at present ki what is happening. I told you to take two even numbers, any two numbers. Don't see your partner's number. ठीक है? And prove that even plus even हमेशा even ही होता है. You can take 3-digit number if you want. You can take 2-digit number. Simplest, you can take 1 digit also. Raise your hand who have already taken. Who have already proved. Okay, shall I call the name then? अमितोज सिंह. अमितोज को मैंने अभी बुलाया था, I think. दिलप्रीत सिंह, roll number 9.
दिलप्रीत, जिसको मैं बुलाऊंगी थोड़ा फास्ट आओगे बेटा, देन ओनली वी कैन गो अहेड. If Dilpreet is not there, roll number 13, Gurbeer Singh. Please tell me which example you have taken. Have you taken any beta? 8 plus 16. 8 plus 16. 6. Oh, very good. Did you get even number? Yes, very good. Please sit down. Please sit down. Be confident in telling. जो हमने लिखा है वो prove होगा. Raise your hand who have taken different examples. This is your own practice, beta. More you will practice, more you will understand. Very good, beta. Let's move ahead. Next, they are saying odd plus odd is even. Two odd numbers are added या फिर two even numbers जब add करते हैं. जल्दी से example ले लो quickly. I will not ask you now. You have to just raise your hand and tell me yes, we have proved. कोई भी example ले लो. I have taken the simplest example. 1 plus 1 is equal to 2, which is the simplest. Take your own example. You can take 3. And one thing बेटा, odd number का मतलब ये नहीं कि same ही लोगे. Choose other. 3 plus 7. You can take 5 and 9. ठीक है? Odd plus odd मतलब 5 plus 9. You different examples लो आप. What is odd plus odd? It is even. It is. इसको even करो. It should be even. You know, whenever we add, we always get even number. यहाँ पे भी even लिखा हुआ है. ठीक है? So this is the beauty you have to remember. कभी भी जब two odd numbers को add करेंगे, then also you get even number. Whenever we add two even number, then also you get an even number. This is the property. ठीक है? And third one, they are saying that even plus odd is odd. दो different example ले लो, even अलग से ले लो, odd अलग से ले लो. Prove yourself. 1 second का काम है. Do it yourself and check whether you are getting odd number or not. Self practice से you find out, prove yourself. Similarly, when we add odd and even, of course ये तो vice versa किया हुआ है. ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता. Odd even करो या फिर even और odd करो plus एक ही बात है. ठीक है बेटा? So हमारा ये process है. आपको ये पता चल गया कि when addition we do, in addition we have found a property कि अगर same numbers हैं, even and even है, या फिर odd and odd है, दोनों same है. Same in the sense, same kind. ये नहीं कि 5 and 5 कर लिया. Same kind, both are odd. It could be 5 and 9. So that will give you even number. ठीक है? अगर different है, एक even है, एक odd है, तो it will give you odd number. This is one property you have to recall. ठीक है? Second one, you are talking about subtraction. कि जब दो even numbers को minus करोगे तो आपके पास even number आएगा. Same kind को जब minus करोगे तो even number आएगा. ठीक है? डिफरेंट काइंड को जब माइनस करोगे तो ऑड नंबर आएगा. डिफरेंट काइंड को जब माइनस किया तो ऑड नंबर आया. ओके, यू कैन से कि इवन बड़ा है या ऑड बड़ा है, जो भी बड़ा है दोनों में से जब भी आप माइनस कर रहे हो तो हमेशा आपका आंसर ऑड आएगा. ठीक है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल लेके यू कैन ट्राई मोर. ओके, सो वन प्रॉपर्टी इज वेरी क्लियर टू यू कि एडिशन साइन जो है हमें क्या दे रहा है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम काइंड. आप इसको कैसे रिकॉल कर सकते हो? सेम काइंड के जो नंबर्स हैं, सेम काइंड ऑफ नंबर्स, व्हाट डू दे गिव? आपने क्या यहां से आपको क्या दिख रहा है? सेम काइंड के नंबर, इवन इवन ऑड ऑड, इवन इवन ऑड ऑड. सेम काइंड ऑफ नंबर्स हमें क्या दे रहा है? इवन. दिस इज द मेजर प्रॉपर्टी यू हैव टू लर्न. ठीक है? अपने आप आपको अपनी शॉर्टकट नोट्स बनाने हैं. तो सेम काइंड ऑफ नंबर जो है हमें इवन दे रहे हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर जो है हमें डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स. ठीक है? दीज आर द फैक्ट्स. तो आपको अपना एक रूल खुद बनाना है कि डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स हैं तो वो हमें ऑड देंगे. ठीक है? अभी बहुत ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अभी थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस भी लगानी है. सेम काइंड ऑफ, इट कुड बी एडिशन, इट कुड बी सब्ट्रैक्शन. जब डिफरेंट काइंड की बात कर रहे हैं, इट कुड बी एडिशन, इट कुड बी सब्ट्रैक्शन. ठीक है? थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है. एंड दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज.
Who are writing this all? Raise your hand. Who are writing? जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप भी नोट डाउन कर रही हो? Yes, good, beta. Very good. If you are copying it down, please keep safe with you. These are notes in front of you. Okay. आपको key points बताए जा रहे हैं chapter के, which are very useful when you will be preparing for your exam. ओके बेटा, ये हो गया. उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, यू टेक सो मेनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल. सेम काइंड के नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इवन का इवन आता है, ऑड का ऑड आता है. मल्टीप्लीकेशन में अलग से प्रोसेस होता है. ठीक है, डिफरेंट काइंड का कर रहे हो, यहाँ पे इवन आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड का कर रहे हो तो इवन आ रहा है. तो ये आप अपने आप इसको, डिविजन आई थिंक आपके अभी है नहीं है, यू डू टिल मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आपका रूल क्या चल रहा है कि सेम नंबर है तो इसमें आप कोई ऐसा वाला रूल नहीं लिख सकते सेंटेंस फॉर्म में. यू कैन नॉट राइट बिकॉज यू नो इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, दो डिफरेंट काइंड को करेंगे तो इवन आएगा. अब आपको कैसे पता चलेगा ये? जब एग्जाम में कभी आप भूल गए कि अभी पता नहीं क्या आने वाला है, मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, इवन ठीक लिखा है या और ठीक लिखा है, तो टेक द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़े बड़े नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो वो बच्चे कैसे करते हैं? उनको अपनी क्विकली अपने एक 2 एक सिंपलेस्ट नंबर है इवन नंबर, 3 एक सिंपलेस्ट ऑड नंबर है. जो प्रोसेस हमारा 2 और 3 के लिए फॉलो हो रहा है वो सबके लिए फॉलो होगा. अंडरस्टूड है? तो कभी आपको रूल भूल भी जाए, यू कैन टेक मेंटली, यू कैन थिंक ऑफ कि 2 के लिए अप्लाई हो रहा है, इवन नंबर के लिए अप्लाई हो रहा है, तो ऑफ कोर्स बाकियों के लिए भी अप्लाई होगा. ठीक है, यू गो लाइक दिस. सो दिस इज द वन वे. अदर थिंग आई वांट टू टेल यू इज second one is see here beta, this is other type of property, sum of consecutive numbers. Okay, one thing more I want you to tell you, one thing जो हम even odd की बात कर रहे थे, एक बार और जरा सुन लो. I want to write more examples. Write down the heading. अभी आपने even odd की बात लिखी है तो write down what is that? Identifying. Write down the heading. Identify even or odd. आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हो गए. आपने बोला कि 2 को प्लस किया, माइनस किया, प्रोडक्ट किया, वो हो गया. अभी आइडेंटिफाई, आपके पास कोई वो है, स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है. ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर इट इज इवन और ऑड? इसके काफी एग्जांपल्स लिखते हैं. लेट अस राइट डाउन 2a + 2b. ये एक एक्सप्रेशन है. हाउ विल यू कम टू नो दिस इज एन इवन और ऑड? सारे इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं, तो हम इसको देखेंगे कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2a + b. तो इसका मतलब है ये क्या होगा, हमारे पास इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है. ठीक है, ऑफ कोर्स ये हमारे पास एक इवन नंबर होगा. एंड वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, दोनों इवन नंबर है. इवन प्लस इवन इज इवन, अभी अभी आपने प्रॉपर्टी की थी, सो दैट्स व्हाई इट इज इवन. ठीक है, सेकेंड थिंग, राइट डाउन, take one more example. If you have expression of this kind, ये इवन होगी या ऑड होगी? जज इट. ध्यान से देखो इसको. फर्स्ट बेंच बॉय बेटा, ब्लू टी शर्ट बॉय, प्लीज टेल मी आपको क्या दिखता है इसको देख के? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दिस इज इवन और ऑड? मैम इवन. इवन. कैन यू टेल मी द रीजन? क्या ऑब्जर्व किया आपने? मैम when we plus two even numbers the sum is even. वेरी गुड. यू से कि v प्लस, ओके, इवन नंबर है, हमें दिख रहा है कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये भी इवन होगा. अदरवाइज व्हेन वी राइट इट लाइक दिस, ये 2 का मल्टीपल है इसलिए ये इवन है. वेरी गुड, वेरी गुड. सिट डाउन. यू हैव ऑब्जर्व्ड इट इन एडिशन फॉर्म. इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन. इसलिए आप देखो कि आपने जो फर्स्ट वाली स्लाइड में जो प्रॉपर्टीज लिखी है ना, इवन प्लस इवन इज इवन, कितनी बार वो आप यूज कर सकते हो. दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग. दिस इज अदर वे ऑफ थिंकिंग. क्या आप बता रहे हो कि ये 2 का मल्टीपल है इसलिए ये इवन है, राइट? आपको बहुत सारी चॉइसेस दी जा रही हैं. नाउ x² + 2. लेट अस डू x² + 2. हाउ विल यू ऑब्जर्व दिस इज इवन और ऑड?
जिनको लगता है ये इवन होना चाहिए, रेज योर हैंड। ओके, जिनको लगता है ऑड होना चाहिए। ओके, जिनको लगता है कि इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, कभी कभी इवन हो सकता है, कभी कभी ऑड हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स कुड बी एनी, इट कुड बी 2, 2 2 जा 4, इवन होगा। इफ इट इज 3, देन 3 3 जा 9, इट इज ऑड। तो फिर क्या लिखें? वी हैव टू राइट टू कंडीशंस फॉर इट। ओके, फर्स्ट कंडीशन इज इफ एक्स इज इवन। ये आपके नोट्स है, की पॉइंट्स है, प्लीज इसको कॉपी डाउन करो साथ साथ में, अंडरस्टैंड एंड राइट। कोई डाउट होगा साथ साथ पूछते जाना। इफ एक्स इज इवन, सपोज हमारे पास इवन है, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा +2 विल बी इवन। टू इंटू टू 4 इवन, 4 इंटू 4 16 इवन, 8 8 जा इवन। ठीक है, जितने भी आप इवन नंबर्स को स्क्वायर करते जाओगे वो सारे आपके इवन नंबर्स बनते जाएंगे। इफ एक्स इज ऑड, then x square plus 2 will be what? 3 3 जा 9 कर लो, 9 9 जा 81। कोई भी आप ऑड नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करोगे वो भी ऑड आएगा। उसमें जब 2 प्लस करोगे वो क्या बनेगा? इवन या ऑड? किसी भी ऑड नंबर में जब 2 प्लस करते हो, हाथ खड़े करो, हो से ऑड, जिनको लगता है कि ऑड होगा। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज काउंटिंग में आपको पता है कि 1 में 2 प्लस करते हो तो 3 आता है, अगला ऑड नंबर आता है, 3 में 2 प्लस करते हो तो 5 अगला ऑड नंबर आता है, एंड सो ऑन। ठीक है, काउंटिंग में, पूरी काउंटिंग में आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे 2 2 प्लस करते जाओगे, आपके नेक्स्ट ऑड नंबर आता जाएगा। लेट अस टेक मोर एग्जांपल। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना बेटा, जब आप क्वेश्चंस में इनको यूज करोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि 2a+2 जो है 2b इवन होता है, ये ऑड इवन होता है, ये इसकी कंडीशन होती है x² + 2 की। ऐसे आपके अलग अलग एक्सप्रेशन हैं जो आपने यूज करनी है। ठीक है, एक और लास्ट करते हैं बेटा। इट इज 3a + 5b। वी आर चेंजिंग द दीज ऑल वेरिएबल्स। वेरिएबल आपको mn की फॉर्म में आ सकता है, xy की फॉर्म में आ सकता है, ab की फॉर्म में आ सकता है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ इट इज 3a + 5b। यू विल से कि 3 का मल्टीपल है तो वो ऑड ही होगा, 5 का मल्टीपल है तो वो ऑड ही होगा। विल इट बी लाइक दिस? ऐसा होगा क्या? 5 के टेबल में सारी ऑड नंबर आते हैं क्या? नहीं, 5 2 जा 10 इवन नंबर आ जाता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो आपको ये पता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि ए हमारे पास क्या है और बी क्या है। अभी 3 3 जा 9 इज फाइन, बट 3 2 जा 6 इवन नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता है कि 3 के टेबल में इवन भी आते हैं, ऑड भी आते हैं। सिमिलरली 5 के टेबल में इवन नंबर भी आता है, ऑड नंबर भी आता है। सो व्हाट शुड वी डू? लेट अस टेक केसेस इफ ए एंड बी आर बोथ इवन। जब दोनों ही इवन है तो क्या होगा? कोई एग्जांपल लेके देखो रफ में। अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप एग्जांपल लेके प्रूव करो और बताओ कि अगर दोनों इवन होंगे तो क्या होगा। अगर ए एंड बी इवन होंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है? कोई भी एग्जांपल ले लो, सिंपलेस्ट एग्जांपल लो ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ए एंड बी बोथ आर इवन। 2 लिया हमने, ए को हमने 2 लिया, 3 2 जा 6, आपको पता ही क्या आया? इवन नंबर। प्लस 5 2 जा 10 इवन नंबर। तो हमारे पास दोनों इवन नंबर आए। व्हाट इज इवन प्लस इवन? इवन, अभी अभी आपने प्रूव किया था। ठीक है, तो आपकी बेसिक चीज कितनी बार यूज हो रही है? इवन प्लस इवन, ऑड प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, बहुत बार यूज हो रहा है आपका। दैट इज द बेसिक थिंग, यू शुड नेवर फॉरगेट। ओके, सेकंड थिंग इज, लेट अस सी इफ बोथ आर ऑड, ए एंड बी बोथ आर ऑड।
दोनों ऑर्डर तो जल्दी से इसकी चेक करो जरा, क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, यू हैव टू टेल मी। दोनों ऑर्डर तो क्या आएगा? नूपुर कौर 29 रोल नंबर, प्लीज कम एंड टेल मी, एग्जाम्पल लो और मुझे बताओ आगे। स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए यहाँ पे, आई एम आस्किंग दैट, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी, अभी नीचे क्या आनी चाहिए स्टेटमेंट, हैव यू ट्राइड? हाँ बताओ। Ma'am, if A and B both are odd, the answer will be odd. ऑड, वाई? यहाँ आंसर आपने बताया ऑड आएगा, यहाँ क्या लिखो, स्टेटमेंट में क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 3A क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा, क्या होगा? इफ यू आर सेइंग बोथ आर ऑड, ए एंड बी बोथ आर ऑड, तो 3A क्या होगा, ऑड होगा? Yes. यस ऑड होगा। एग्जाम्पल लिए या आप ऐसे ही गेस कर रहे हो बेटा? एग्जाम्पल लेके देखा है आपने? No. देखो 3 3 9, ए को मान लो हमने 3 ले लिया, ऑड नंबर है, 3 3 9, तो हमारे पास ऑड नंबर बनेगा। कोई भी आप ऑड नंबर ले लो, 7 3 21, ऑड नंबर आएगा, ऑफ कोर्स आएगा वो। सिमिलरली बी को अगर हमने ऑड नंबर लिया साथ में, तो व्हाट इट विल बी, 5B क्या बनेगा, No, odd. ऑड ऑफ कोर्स, 5 3 15, ऑड प्लस ऑड, तो आपकी स्टेटमेंट बन गई ऑड प्लस ऑड, ये आपकी यहाँ पे बन रही है। थैंक यू, सिट डाउन। अब ये तो हमने लिए दोनों ऑड और दोनों इवन, ठीक है। अगर बाई चांस हमारे पास कोई ऐसा आ गया कि एक ऑड है एक इवन है, फिर क्या करोगे आप इसी केस में, व्हाट वुड यू डू? थर्ड नंबर इसका डालो, हो सकता है ना कि एक ऑड हो एक इवन है, ऐसा भी हो सकता है। A is odd and B is even, ओके। उल्टा भी हो सकता है A इवन हो B ऑड हो, तो हमारा कहने का मतलब है कि दोनों अलग अलग काइंड के हैं, सेम काइंड नहीं है। ओके तो फिर क्या होगा आपका, अगर A आपके पास ऑड है तो अभी अभी आपने बताया कि ऑड नंबर बनेगा, B आपके पास इवन है तो 5B आपने बताया कि इवन होगा। तो ऑड प्लस इवन क्या होता है, क्या कंडीशन है ऑड प्लस इवन की? डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स आपने लिखा होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर की एडिशन क्या बनती है बेटा? नहीं याद है तो जल्दी से एग्जांपल ले लो माइंड में, ये नहीं सोचना कि मेरे को अभी पिछली स्लाइड का याद नहीं है या फिर मैंने लिखा नहीं था। क्विकली एग्जांपल ले लो, कोई भी ऑड प्लस इवन क्या होता है? सक्षम कुमार रोल नंबर 34। बेटे मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमें, आई वांट टू सी वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, आप मेरे को ध्यान से सुन रही हो या नहीं, ठीक है। मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ, कुछ गलत होगा वी आर डिस्कसिंग इट। व्हाट शुड बी ऑड प्लस इवन, प्रॉपर्टी नहीं याद है कोई बात नहीं, एग्जांपल ले लो क्विकली माइंड में एंड टेल मी क्या होना चाहिए। Odd. ऑड, एग्जांपल दो मेरे को जल्दी से कोई सोच के। 5 plus 5 plus 5 plus 8, yeah, 5 plus 2 you can say, 5 plus 2 is also fine, sit down, thank you। ओके ये तो सारे आपके एडिशन के हुए हैं ना, ठीक है। लेट अस डू वन फॉर, एक वो करते हैं लास्ट वाला, सब्ट्रैक्शन का करते हैं एक चेकिंग, हाउ डू यू चेक कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इवन है या ऑड है। लेट अस टेक वन लास्ट एग्जांपल, 6m minus 3n, 6m minus 3n, ठीक है। यू कैन टेक इट आउट, 3 को कॉमन ले सकते हो, 2m minus n, और फिर इसको चेक कर सकते हो कि m और n की हमारी क्या कंडीशंस बन रही हैं। दिस इज योर होमवर्क, आई विल टेल यू, ठीक है। प्लीज ट्राई इट एट होम, अलग अलग एग्जांपल लेके देखना, प्लीज ट्राई एट होम।
ई प्रॉपर्टी लिख लो और स्पेस छोड़ दो. ट्राई एट होम कि आपके पास इवन बनता है या ऑड बनता है. एम और एन को अलग अलग लेके देखना. ओके, दोनों को इवन लेके देखना, दोनों को ऑड लेके देखना, दोनों को सेपरेटली लेके देखना. ट्राई करना कि क्या क्या आता है आपके पास. ओके, लेट अस डू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आई थिंक यू आर बोर्ड ऑफ सीइंग दिस बार बार, है ना, सेम चीज बार बार देख रहे हो. सो चलो अभी सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ आप. और क्या प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है इस चैप्टर में? इट इज अबाउट एडिंग 4 consecutive numbers. ओके, 4 consecutive numbers को जब आप ऐड करते हो, consecutive numbers क्या होते हैं? What are consecutive numbers? Can you tell me? Write down. हेडिंग लिख लो, consecutive numbers. इसकी काफी कंफ्यूजन होती है, 9th-10th में भी बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है. इट इज CON. ओके, CO. Consecutive. It is like this. We call it consecutive numbers. स्पेलिंग देख लो इसके, TIV. सुना होगा आपने, काफी बार यूज किया होगा. अब आई वांट टू आस्क यू कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? रुपिंदर सिंह, रोल नंबर 33. हैव यू हर्ड ऑफ इट? कंसेक्टिव नंबर्स, व्हाट आर दे? रुपिंदर, डू यू नो बेटा, सुना हुआ ये नाम आपने? माइक माइक ऑन करो. Ma'am, the number which come together. टुगेदर, कोई एग्जांपल दो. Like 2, 3, 4, 5, 6. दोबारा बोलो. Ma'am, 2, 3, 4, 5, 6. या दे आर इन नेबर ऑफ ईच अदर. यस, गुड, वेरी गुड. सबको पता होगा ये. माइक ऑफ कर दो. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेक्टिव नंबर्स विच आर नेबरिंग नंबर्स. जिसको नहीं पता, यू कैन राइट डाउन. दे आर नेबरिंग नंबर्स. नेबरिंग नंबर्स मीन्स जिनके बीच में कोई गैप नहीं होगा. 2 और 3, 2, 3, 4, मे बी 5, 6, 7, 8 कंटिन्यूशन में जो होते हैं, दे आर नेबरिंग नंबर्स. ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? आपके 8th क्लास में दे हैव टोल्ड कि जब हम 4 नंबर्स को, कोई भी 4 नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कोई कभी ऐड करेंगे, कभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करें, वी कैन पुट एनी साइन इन बिटवीन. यहाँ पे आप देखो कितने सारे साइंस हैं. ऑलवेज वी गेट एन इवन नंबर. हमेशा आपके पास इवन नंबर आता है. उनको कैसे भी हम डील कर लें, you always get an even number. You can see here 26, 10, 12, -4, 14, -2, 0, -16. They are all even numbers. Don't talk children, please look straight. These are all even numbers. ठीक है, हम 4 consecutive numbers को कैसे भी फॉलो करें, वेदर उनको कहीं प्लस कर लिए, कहीं माइनस कर लिया, अपनी मर्जी से. यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर हमेशा इवन आएगा. अब इवन नंबर आपने तो पढ़े हुए हैं कि वो होल नंबर्स होते हैं, कि वो 2, 4, 6 एंड सो ऑन. ठीक है, वो तो छोटी क्लासेस में हमने जब इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो बताते हैं कि इवन नंबर ये होते हैं. अभी जो आपकी सीनियर क्लासेस में ये जो हमारे नेगेटिव साइंस है ना, ये आप देख रहे हो नेगेटिव साइन है या फिर 0 है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है. इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, दे आर इवन नंबर्स. ठीक है, वी विल बी कॉलिंग देम ऑल आर इवन, ऑल आर इवन. चाहे नेगेटिव साइन है, चाहे उसके साथ 0 तो ऑफ कोर्स आता ही है लिस्ट में. तो ये सारे के सारे हमारे इवन नंबर्स होंगे. ठीक है, तो आपको इसकी जो प्रॉपर्टी लिखनी है ना बेटा, कंसेक्टिव 4 कंसेक्टिव नंबर्स की, वो एक लिख लो, सिंगल लाइन, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, ऑन एडिंग, ऑन पुटिंग आई शुड से, बिकॉज एडिंग नहीं मैं बोल रही हूँ. ऑन पुटिंग एनी साइन, it could be plus or minus in between
4 कंसेक्टिव नंबर, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी सिर्फ 4 कंसेक्टिव नंबर्स के लिए है, ठीक है, स्पेशली फॉर 4 कंसेक्टिव नंबर्स। राइट डाउन स्मार्टली, बड़े अच्छे आपके नोट्स बन रहे हैं, नीटली बनाना, इनको नीटली लिखना सो दैट यू कैन यूज इट लेटर। यही पॉइंट्स आपके एग्जाम की तैयारी हो गई, ठीक है। एग्जाम के लिए कोई ये नहीं कि क्वेश्चंस करके जाने, ये नंबर प्ले चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने ये रूल लर्न कर लिए ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू डू। ऑन पुटिंग एनी साइन प्लस और माइनस इन बिटवीन 4 कंसेक्टिव नंबर्स, द रिजल्टिंग नंबर, यहाँ पे कॉमा डालो एंड पुट हियर द रिजल्टिंग नंबर is always even, always, always को अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ओके, वो कभी चेंज नहीं होगी। ब्रैकेट में लिख लो, इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है, रिजल्टिंग नंबर कुछ भी हो। We will not looking noticing the sign, we are noticing the number only, क्योंकि ये now you have studied about integers, 7th क्लास में आपने इंटीजर्स के बारे में सीख लिया। सो अभी हम नंबर्स को इंटीजर्स के फॉर्म में ही देखेंगे सबको। there is no differentiation between negative and positive, हम सबको ही सेम क्वालिटी ऑफ नंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल भी है, वी हैव टेकन 5, 6, 7 and 8 एंड यू टेक इन योर नोटबुक, जल्दी से ये लिख के, लाइन लिख के जल्दी से एक और एग्जाम्पल ले लो। आई एम टेकिंग हियर 14, 15, 16 and 17। लेट अस टेस्ट फॉर 14, 15, 16 and 17, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, कोई भी इसमें साइन ले लो अपनी मर्जी से। all the children will take different sign, anywhere you can put minus sign, anywhere you can put addition sign, okay, and solve them। उनको प्लस माइनस की फॉर्म में इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, यू नो इट। बिगर नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, आंसर विल बी नेगेटिव, यू नो, प्रॉपर्टी यू नो, ठीक है। प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी, आर यू गेटिंग इवन नंबर, सॉल्व इट इन एनी वे। हाथ खड़ी कर दो हु आर गेटिंग इवन नंबर। आई विल नॉट बी आस्किंग यू आंसर, आई वॉन्ट ओनली इवन। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी फास्ट कर लिए कई बच्चों ने, एंड जो कर रहे हैं दे विल ऑल्सो गेट इवन नंबर। हैंड्स डाउन बेटा। आई थिंक फर्स्ट चाइल्ड बच्चे यू आर डूइंग इट मेंटली, आई थिंक यू आर नॉट नोटिसिंग एनीथिंग, कुछ नोट नहीं कर रहे हो नोटबुक पे, आर यू राइटिंग? It will be useful for you next time, okay? At present, you are sitting in the class, I am helping you for few points, we are discussing the things. Of course, you will understand, you will answer me correctly. But after 1 month or so, when you will be preparing for your exam along with other 4, 5 chapters, तो थोड़ी सी confusion हो सकती है। Please prepare nice notes ताकि आपका उस समय time save हो जाए। Okay, beta. So this is done. I think this property is clear to everybody. Let us do the next one. Next one is digital roots. Digital roots, have you done it in class? Class में कर लिया आपने digital root? Have you started this chapter? Number play शुरू की है क्लास में आपने? हाथ खड़ी करो, yes? Okay, okay, ठीक है बेटा, hands down. Digital root क्या होता है? It is a new name for you. Let us see. Digital root is the recursive sum of all the digits in a number. Okay. Given n, take the sum of the digits of n. If that value has more than one digit, continue reducing it in further and till the time you get a single digit. जब तक जितने भी बड़ा आपको नंबर दिया हो, 6 डिजिट दिया हो, 7 डिजिट है, 10 डिजिट नंबर दिया हुआ है, उनके डिजिट्स को ऐड करो, जो आंसर आता है फिर से उसके डिजिट्स को ऐड करो, जो आंसर आता है फिर से उसके डिजिट्स को ऐड करो, लास्ट में जो आपके पास सिंगल डिजिट बचेगा
आफ्टर सक्सेसिव एडिशन ऑफ डिजिट्स, वो सिंगल डिजिट जो होगा आपका डिजिटल रूट कहलाएगा। ठीक है, लेट अस टेक द बिगर एग्जांपल। नीचे देख रहे हो आप, इट इज वेरी बिग नंबर, वी आर एडिंग दीज ऑल डिजिट्स, सबको ऐड करके 29 आया। 29 को फर्दर ब्रेक किया, 2 + 9 वी आर गेटिंग 11। 11 को फर्दर करना है बिकॉज हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर नहीं आया है, दैट्स व्हाई इट इज 1 + 1 = 2, सो 2 इज अ डिजिटल रूट। सिमिलरली अपर नंबर डिफरेंट नंबर है, डिजिट्स को ऐड करो सी एंड यू विल सी इट सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट वो इवन है या ऑड है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी लाइक दिस ओनली। ठीक है बेटा, लेट अस डू फ्यू एग्जांपल्स। एक एग्जांपल करो इसका। ओके, आई एम टेलिंग यू orally, you take your own example. Shall I tell you the number? Take 999, take 999 and think of it कि वो कैसा होगा। चलो, आई एम टेकिंग 4 times, टेक एग्जांपल एंड फाइंड आउट द डिजिटल रूट। डिजिटल रूट ये एक सिंगल ही नंबर आएगा, सबका सेम आएगा। ओके, प्लीज डू इट एंड टेल मी इसका डिजिटल रूट क्या आ रहा है। आई एम गेटिंग इट एज 9, माई डिजिटल रूट इज 9। और किसका 9 आ रहा है, हाथ खड़ी कर दो। गुड बेटा, सो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग, आपको कोई भी नंबर आ जाए ऐड करते जाओ एंड इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, यू कैन टेक मोर एग्जांपल्स। चलो, लेट अस डू द लास्ट वन नाउ, cryptariums. These are strange things. Strange things means these are actually codes. कोड नंबर जैसे होते हैं, तो कोड्स को आपको नंबर में कन्वर्ट करके आपको गेस करना है कि वो किस काइंड का नंबर है। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टोग्राम होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है कि आपके पास डिजिट्स, यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं और अल्फाबेट्स को आपने गेस करना है नंबर की फॉर्म में और आपको उसको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में कि वेदर इट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको देख के। सो वन थिंग इज, जो इसमें थंब रूल है, दैट इज कि जो अल्फाबेट्स होंगे वो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, 0 और 9 के बीच में ही आपने डिजिट्स को लेना है। और सेकंड थिंग इज कि आपकी जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे 10th प्लेस पे शुरुआत में जो नंबर शुरू होता है, जैसे हमने 1 7 17 बोला या 5 1 51 बोला, तो वो फर्स्ट नंबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज अ कंडीशन। ठीक है, 2 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लो, यू कैन राइट डाउन। क्या क्या रूल इसमें फॉलो करना है, प्लीज राइट डाउन। These are puzzles. ठीक है, puzzles तो ये है ही है, where digits are replaced by alphabets. ठीक है, अभी अल्फाबेट जो है उनको आपने डिजिट्स में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसके आप इसमें क्या है बेटा, आपको एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल लोगे उतने आपका प्रैक्टिस होगी इसमें। लेट अस टेक एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल सिंपलेस्ट मैं ले रही हूँ, 1 डिजिट नंबर का। लेट अस टेक इट T T T, we are adding them and getting UT. We have
3 alphabets of the same kind. अगर T लिए तो T will be representing one number. कोई भी नंबर फ्रॉम 0 to 9 आप चूज कर सकते हो कि वो T जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अभी इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है इसका. हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा, लेट अस ट्राई फॉर T इज इक्वल टू 1. अगर आप T इज इक्वल टू 1 लोगे तो 1 + 1 + 1 नीचे 1 नहीं आएगा, ये तीनों सेम होने चाहिए. ठीक है, लेट अस टेक T इज इक्वल टू 2. 2 लोगे तब भी 2 3 6, नीचे 2 नहीं आ सकता. तो कीप टेकिंग. ठीक है, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है. तो 3 के लिए भी नहीं आएगा बिकॉज 3 3 9 आ जाएगा. 4 भी नहीं आएगा. 5 could be there. Let us try for 5. When you do 5 + 5 + 5, 5 3 15, तो नीचे यहाँ पे 5 आ रहा है. ठीक है, इट इज मैचिंग. टी तो मैच कर ही रहा है. अभी रह गया यू की बात. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 15 आ रहा है, तो यू हमारे पास 15 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है आपका. गेस करना है. यहाँ पे यू आपके पास 1 है एंड टी इज इक्वल टू 5 है. दिस इज द वे यू आर फाइंडिंग. ठीक है बेटा, थोड़ी थोड़ी इसमें ट्रिक्स हैं बेसिकली. विल बी डूइंग मोर एग्जांपल. जितनी एग्जांपल्स करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी. क्लोजिंग है. Second one, let us take one more example. I'm doing here only. K2, K2, you know कोई भी अल्फाबेट आ सकते हैं आपके पास. It is giving you H, M, M. थोड़ा सा इसमें क्लू भी दिया हुआ है आपके पास. तो क्लू क्या दिया हुआ है, आपको दो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे 2 and 2. When you are adding them 2 + 2, of course 4 आएगा. तो आपको ये तो पता चल ही चुका है कि यहाँ पे M जो है वो 4 है. क्लू मिल चुका है आपको. यहाँ पे 4 है तो ऑफ कोर्स यहाँ भी 4 आएगा. दोनों ही M है. एक लेटर एक ही रिप्रेजेंट करता है नंबर. ठीक है, नाउ थिंक ऑफ द लास्ट नंबर H. K + K, both should be same number. K + K. I take 4 + 4, 8 आएगा. तो वही हमारे पास H will be 4 से मैच नहीं कर रहा है. We want such number. कुछ नंबर यहाँ पे चाहिए ना हमें. Let us do 5 + 5. वो भी नहीं यहाँ से मैच कर रहा क्योंकि 4 है यहाँ पे. 6 + 6 12, वो भी नहीं मैच कर रहा बिकॉज यहाँ पे 4 है. 7 + 7 14. इट कुड बी, लेट अस सी, 7 + 7. अगर k इज इक्वल टू 7 and 7 लेते हैं तो यहाँ पे 14 आएगा एंड इट विल रिप्रेजेंट 1. तो h क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1. सो वी हैव आंसर k इज इक्वल टू 7, h इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 4. ये आपके पास आंसर बना. ठीक है, तो यू हैव टू ट्राई ट्राई एंड ट्राई. इज इट फाइन? Next time in worksheet we'll be doing more examples. Till the time, practice this all. Okay, bye bye beta. See you next time. बच्चे ना नोट